आंदोलन में जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में जितने भी ग्रंथालय हैं उनका जो योगदान है उनको भी रेखांकित किया जाए। इसके साथ साथ जो सामाजिक परिवर्तन में ग्रंथालयों की भूमिका, इस पे भी अभी प्रोजेक्ट लेने की बात हो रही है और प्रोजेक्ट देने की बात हो रही है, तो ये बात आगे आएगी। लेकिन आज का जो मुख्य हमारा उद्बोधन प्राप्त होने वाला है बड़ा हमारे शोधार्थियों को, विद्यार्थियों के लिए और यहाँ तक कि प्राध्यापक के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें ग्रंथालयों की भूमिका एक बड़ा यूनिक विषय रहने वाला है, जो हम सभी के लिए बड़ा प्रेरणादायी होगा। और अमित जी को हम आगे के प्रोसीडिंग्स के लिए अधिकृत करते हैं कि वो आगे की कार्रवाई को बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। जी धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। सर हमारे इतिहास के विद्वान हैं तो बहुत सारी जानकारियां हैं सर के पास, पूरा लाइब्रेरी का इतिहास भी सर ने पढ़ा हुआ है, तो बहुत कुछ सीखने मिलता है। लेकिन आज हम जो हमारे मुख्य वक्ता हैं उनके जो ज्ञान है उनको हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो मैं केपी सिंह साहब से अभी उनको आमंत्रित करता हूँ कि वहाँ पर आएंगे। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम देश की आज़ादी का जो 75वीं वर्षगांठ है इसके उपलक्ष्य में जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसी श्रृंखला में आज के हमारे इस कार्यक्रम को हम आयोजित कर रहे हैं जिसका शीर्षक है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में ग्रंथालयों की भूमिका। तो हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वह काफी गहन ज्ञान रखते हैं इस विषय पर। तो हम उनको आमंत्रित करने से पहले मैं जो सर की व्यावसायिक उपलब्धियां हैं, जो उनके अनुभव हैं, उन पर एक दृष्टि डालना चाहूंगा। Professor K.P. Singh currently working as a professor at Department of Library and Information Science of the University of Delhi. Professor Singh is a distinguished academician, practicing librarian, teacher activist, researcher, academic administrator, and learned orator. He has additional responsibility as a coordinator, academic and cultural affairs, Faculty of Arts, University of Delhi. Also holding the position of founding president, SR Foundation of Library and Information Science, General Secretary, Delhi Library Association, and Secretary, Media, National Teacher Democratic Front of Delhi University. Prior to joining Delhi University, Professor Singh worked at many organizations such as Indian Council of Agriculture Research, NIC, NVS, CBI, and DRDO. He is the teacher. He is the basically first teacher of LIS department who elected 2 times consecutively as academic council member of University of Delhi. Professor Singh is associated with the several committee of the university on admission, appointment, promotion, evaluation, academic affairs, and examination. Currently a member of University Court of Delhi University as a coordinator, academic and cultural affairs, Faculty of Arts. He is actively engaged as editor, joint editor, member, editorial board of various national and international peer-reviewed research journals. He has authored 11 books, 16 edited books, 104 research papers, 27 conference proceedings, 25 chapters, and 20 book reviews. Professor Singh has organized various academic and professional activities such as popular lecture series, refresher course, orientation course, seminars, national and international conferences, alumni meets, and so on. For his many-faceted personality and extraordinary contribution to the library education and research and services, various national and international professional bodies recognize the work of Professor Singh with so many very prestigious awards. So, our today's speaker is very special in terms of experiences and command on topic. Now, without wasting the time, I welcome Professor K.P. Singh sir for today's talk. Sir, please. सभी को नमस्कार। आज बहुत ही पावन डे है
और आज का ही दिन नहीं बल्कि मैं अगर कहूँ सच्चे मायनों में तो ये जो वीक है, जो सप्ताह है, ये हर तरह से बड़ा ही पवित्र और पावन पर्व रहा है। 10 जनवरी को अगर हम याद करते हैं तो इंटरनेशनल हिंदी डे पूरे विश्व ने, पूरे इंडिया ने सेलिब्रेट किया। 11 जनवरी को जब हम बात करते हैं तो जय जवान जय किसान के उद्घोषक, राष्ट्र रक्षा के भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म पुण्यतिथि, उनको राष्ट्र ने नमन किया। 12 जनवरी को हम देखते हैं तो पूरे भारत की आत्मा, यूथ के प्रेरक, यूथ के प्रेरणा स्रोत, ज्ञान के यूं कहें कि पुष्प गुच्छ, स्पिरिचुअल गुरु जिन्होंने भारत को, पूरे वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न वर्ल्ड को भारत के दर्शन कराए, परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती समारोह। 13 जनवरी को हम देखते हैं कि फेस्टिव का पर्व लोहड़ी पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया। और आज 14 जनवरी का दिन, आज हम मकर संक्रांत, मैं इसे फेस्टिव ऑफ फेस्टिव्स बोलता हूं। दिस इज ओनली द इंडियन फेस्टिवल्स जो कि राष्ट्र के हर प्रांत में डिफरेंट नामों से बड़े हर्षोल्लास और उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला आज मकर संक्रांत का। नॉर्थ में जब हम बात करते हैं तो मकर संक्रांति जी के रूप में, गुजरात महाराष्ट्र में बात करते हैं तो उत्तरायण, साउथ में पोंगल के रूप में, और ईस्ट में ये बिहू के रूप में मनाया जाता है। और जो 15 जनवरी है वो भी एक खास दिन हमारे राष्ट्र के लिए है, जन जन के नायक के लिए है। और आज का दिन, जो एक आपने दिन चुना है, बड़ा ही पवित्र दिन है, और जो एक टॉपिक चुना है वो भी एक बहुत ही अच्छा एक विषय पे बात आपने चुनी है और उसको रखेंगे कि 15 जनवरी भी हमारा इंडियन आर्मी डे के नाम से सेलिब्रेट होता है। और इसी दिन 15 जनवरी 1949 को हमारा फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीएम करसिदप्पा हमें भारत को मिले। तो ये जो एक सप्ताह है, बड़ा ही पावन और बड़ा ही ये कहें कि बड़ा हर तरह से राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के लोगों के लिए एक पर्व का सप्ताह रहा है। सबसे पहले मैं एट वेरी आउटसेट, बिफोर स्टार्ट माय टॉक, बिकॉज माय teaching and study is English medium, so please bear with me my very poor Hindi. मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में अपनी बात रखूं, बीच बीच में कुछ मैं इंग्लिश में भी बात रखना चाहूंगा। कुछ ऐसे शब्द, ऐसे टर्मिनोलॉजी जो मैं हिंदी में उनको उपयुक्त वर्ड नहीं चुन पाऊंगा, तो मैं कोशिश करूंगा। मैं सबसे पहले सांची यूनिवर्सिटी, जो कि एक बहुत ही स्पेसिफिक थीम पर, बड़े ही यूनिक यूनिवर्सिटी, बुद्धिस्ट और इंडिक स्टडी के ऊपर हमारे भोपाल में 10-12 साल अपने अस्तित्व में आई। उनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर माननीय ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नीरजा गुप्ता जी और उनके कुल सचिव प्रोफेसर अल्पेश चतुर्वेदी जी, और आज के कार्यक्रम के संयोजक और कन्वीनर और सूत्रधार जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया है, हमारी लाइब्रेरी जमात के लिए, लाइब्रेरी कम्युनिटी के लिए, पूरे भारतवर्ष से जितने भी हमारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स,
एजुकेशनिस्ट, रिसर्चर, स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं। प्रिय मित्र अमित तमरकर जी, मैं अपनी तरफ से, अपने विश्वविद्यालय की तरफ से, अपने विभाग की तरफ से आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपको साधुवाद देता हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया, और वो भी एक पवित्र डे पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। और मुझे तो ये बहुत ही खुशी का एक अनुभव और पल रहा है ये पूरा साल। हालांकि हम एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन से गुजर रहे हैं पिछले 2.5 साल से, कोविड का सामना करते हुए। फिर भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, शिक्षा आगे बढ़ रही है, टीचिंग और लर्निंग भी उसी स्तर से बढ़ रही है कि मेरे लिए तो ये जो हम पूरा राष्ट्र का हर बच्चा भारत और भारत के हर भारतवंशी जो 75वां अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। और मेरे विभाग ने, जहां पर मैंने अध्ययन किया, अध्यापन कर रहा हूं, शायद आपको पता होगा कि मेरे विभाग ने अपने अस्तित्व के 75 साल सेलिब्रेट किए हैं, जिसमें हमने पूरे कोविड के समय में पूरे ईयर 11 प्रोग्राम्स किए, जिसमें फिजिकल मोड में भी हुए, ऑनलाइन मोड में भी हुए, जहां हमने पूरे शिक्षा जगत से, आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से, वाइस चांसलर्स, नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशन डायरेक्टर्स, सोशल वर्कर्स, मीडिया पर्सनल, सबको कनेक्ट करने किया, और एक लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के ऊपर एक जो अलग जलाई कि इसका क्या एक महत्व हमारे शिक्षा में है, हमारे जीवन दर्शन में है, उस पे हमने ऑर्गेनाइज किया। और मेरे लिए और भी अत्यंत खुशी की बात है कि मेरा खुद विश्वविद्यालय 1 मई 2022 से 100 शताब्दी समारोह में इंटर करने जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय एक मात्र विश्वविद्यालय नहीं है, इसका हर एक कॉलेज, एक एक विभाग, एक एक विश्वविद्यालय के समकक्ष ही नहीं बल्कि उनसे कहीं संख्या में बड़ा रूप है। 90 कॉलेजेस, 79 डिपार्टमेंट्स। और मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं कि जब मैं अपने यूनिवर्सिटी के बारे में सोचता हूं और कहता हूं तो फक्र के साथ ये बात करता हूं कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली का नहीं है, पूरे भारतवर्ष का विश्वविद्यालय है, जहां पे पूरे भारत से, हर कोने कोने से, हर किसी की एक इच्छा होती है कि हम वहां दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन करें। एक फैकल्टी ऑफ लॉ जो मेरा अपना एक सिंगल डिपार्टमेंट है, मैं जब उसको साइज, इंटेलेक्चुअलिटी और स्केलेबिलिटी के रूप में देखता हूं तो मैं कहता हूं और मानता हूं, और आप भी उसको देख के आश्चर्यचकित होंगे कि भारतवर्ष के जितनी भी टोटल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, उनका टोटल इनटेक इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट इनरोलमेंट्स और टोटल स्टाफ इन टर्म्स ऑफ द एकेडमिक्स, अकेले फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी के समकक्ष है। 328 की सैंक्शन पोजीशन, 2450 का स्टूडेंट का इनटेक टोटल एनएलयू के बराबर है। इसलिए हमारी दिल्ली विश्वविद्यालय का शायद लोगो हाथी है, एलिफेंट है, और एलिफेंट साइज का भी प्रतीक है और इंटेलेक्चुअलिटी का भी प्रतीक है। और इंटेलेक्चुअलिटी के बारे में एक बात कहूं कि 2014 और 15 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में टोटल जजेस में से 28 में से 12 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तरुण गोगोई जी, दिल्ली विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के एलुमनाई थे। तो ये हमारे लिए देश की धरोहर है, देश की संपदाएं हैं। और आज का जो एक वक्तव्य मैं देने जा रहा हूं, थोड़ा सा कुछ हटके है कि जो हमारा नेशनल मूवमेंट है, स्वतंत्रता संग्राम है, उसमें जो लाइब्रेरीज की क्या भूमिका रही है, लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी सेगमेंट्स हैं। अभी मैं सुन रहा था कि हमारे प्रोफेसर चतुर्वेदी साहब ने बात कही कि जो लाइब्रेरीज में नेशनल लाइब्रेरीज है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरीज है,
नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसमें कोई शक और कोई गुंजाइश नहीं है कि बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। द एशियाटिक सोसाइटी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कैलकाटा। मैं जब स्वतंत्रता संग्राम की बात करता हूं तो थोड़ा सा पीछे हट के बात करता हूं। जब 1857 में हमारा फर्स्ट एक जिसको हम कहते हैं कि फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम की एक चिंगारी उठी और एक क्रांति हुई, और जिसमें हमने ये एक नारा लिया कि हमें जो स्वतंत्रता की बेड़ी से हमें देश को आजाद कराना है, तो उसमें न जाने कितने ही माँ के सपूत, माँ की हमारी वीरांगना है आगे आई, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और न जाने कुंवर सिंह, बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स आए। क्या इनका कभी कोई सरोकार, और उसके बाद में 1947 से पहले क्या लाइब्रेरीज का कोई सरोकार रहा है? चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, बाल गंगाधर तिलक हो, लाला लाजपत राय हो, वीर सावरकर हो, महात्मा गांधी, अंबेडकर, टैगोर, क्या ये बिगर लाइब्रेरी को, बिगर पुस्तकालयों के उस समय के जीवन मानस में क्या इतना उन्होंने बिगर पुस्तकालय और बिगर उस बहुमूल्य किताबों के माध्यम से कर पाए? जब हम इनकी जीवनी को पढ़ते हैं, जब इनके अतीत में हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली पुस्तक और पुस्तकालयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं वैसे तो एस्टम4 बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि बहुत सारा सेगमेंट होता है तो ट्रैक पर रहने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि अपनी जो पीपीटीज हैं उनके माध्यम से मैं अपने आप लोगों को कनेक्ट करूं, और उम्मीद है कि आप उसमें से कुछ नयापन आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि आज जो हम आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल जो मना रहे हैं, आज हम उन राष्ट्र के उन रणबांकुरों, रणधीरों के लिए प्रति भी नमन करते हैं और कृतज्ञ करते हैं कि जो आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। उन्होंने तो अपना फर्ज निभाया, न जाने कितने ही रणबांकुरों ने अपनी जीवन की आहुति दी, जीवन का बलिदान दिया, देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए। सच्चे मायनों में अब हमारा भी उतना ही उत्तरदायित्व है। और एज ए इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, एज ए इंफॉर्मेशन वर्कर्स, एज ए लाइब्रेरियंस, कि जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारी लेगेसी है, जो एक हमारी संस्कृति और सभ्यता है, क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र विश्व में है, इस भारत में ही ऐसे राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र संत, राष्ट्र मुनि, वेद और किसी भी विषय को ले लीजिए, अगर हम अतीत में जाएंगे तो वो स्वर्णिम अक्षरों में हमें मिलेगा। हमारा ही एक ऐसा राष्ट्र है कि जहां जीवन को हमने खुद चुना और जीवन और मृत्यु को भी खुद चुना। 12 जनवरी जैसे मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद जो कि हमारे यूथ के पुंज हैं, जो यूथ के ऊर्जा स्रोत हैं, देखिए कि जब वो 4 जुलाई 1902 को जब वो अपने जीवन को, अपने मृत्यु को अपने गले लगाया, तो ये भारत की ही ऐसी भूमि की पराकाष्ठा है, भारत की भूमि की है ये ऐसा एक अनोखा उदाहरण जो विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, कि जहां हमारे साधु संतों, हमारे ग्रेट वॉरियर्स ने, ग्रेट संतों ने अपने मृत्यु को अपने आप चुना। मैं जब उनके उस डे को याद करता हूं तो हे कृतज्ञ राष्ट्र आपको नमन करता है कि 4 जुलाई 1909 को दिनचर्या के साथ साथ सुबह उठते हैं, 3 घंटे मेडिटेशन करते हैं, और उसके बाद जो वेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन जो उन्होंने स्टैब्लिश किए कलकत्ता में, वहां वो जाते हैं, अपने डिसाइपल के साथ में 3 घंटे क्लास लेते हैं, डिस्कशन करते हैं, और 12-1 बजे के आसपास वो एक प्रस्ताव करते हैं कि भी एक इस वेलूर मठ में, रामकृष्ण मिशन में
संस्कृत का विद्यापीठ होना चाहिए। और उसके बाद में शाम को वो 7 बजे बिस्तर पे जाते हैं सोने के लिए और कहते हैं अपने डिसाइपल से कि प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, और 9:30 बजे वो अपने समाधि में जाते हैं और अपने देह का त्याग कर देते हैं। ये भारत के महावीरों की धरती है। ऐसे न जाने कितने ही रामकृष्ण परमहंस, जिन कितने ही आपको, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हों, चाहे आपके यौगिक गुरु हों, चाहे आज हमारे उस समय के स्वतंत्र वीर हों, आजादी के वो सपूत हों, जिनमें नाम आता है खुदीराम बोस। 19 साल का बच्चा, क्या एज होती है 19 साल की। 1909 में जब एक अरबिंदो के साथ में एक कॉन्स्पिरेसी हुई, एक जिसको कि अलीपुर बॉम्ब कांड कहते हैं, और उन्होंने उस समय के जो ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि 1905 में जो बंगाल जो इन्होंने किया, बंगाल का विभाजन किया ब्रिटिशर्स ने, तो डगलस को मारने के लिए मुजफ्फरपुर में उन्होंने गोली चलाई और उसके केस में 19 साल का बच्चा फांसी पे लटक गया। भगत सिंह, कितनी एज थी, 24 साल। अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, इनकी हमारी जो कुर्बानियां इन्होंने दी हैं, इनको ऐसे ही व्यर्थ में नहीं जाने देना। एज ए इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, एज एजुकेटर्स, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा अकाउंटेबिलिटी है कि हम जो हमारे राष्ट्र की जो एक भाव है, जो एक राष्ट्र क्रांति है, उसको हम अवगत कराएं। लाइब्रेरी का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं चाहूंगा कि पीपीटीज के माध्यम से थोड़ा सा मैं शेयर करूं। प्लीज मेरे को बताइए, विजुअल है? यस सर। यस सर। देखिए, रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी संस्कृति सस्टेन नहीं रह सकती जब तक कि उसका नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे उसको लाइब्रेरीज कहें, आर्काइव्स कहें, म्यूजियम्स कहें, एग्जीबिशन कहें, किसी भी रूप में क्यों ना कहें, वो सस्टेन नहीं रहेगा। तो जो लाइब्रेरीज है, आप उसको मात्र, मेरा लाइब्रेरी को देखने का नजरिया, देखने की जो फिलॉसफी है, समथिंग डिफरेंट है। क्योंकि लाइब्रेरीज डज नॉट मीन कि एक बिल्डिंग्स है जहां पे किताबें हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूं हमारे सनातन परंपरा में आपको हिंदू संप्रदाय में ऐसा कोई भी घर नहीं मिलेगा जहां पूजा का स्थान ना हो। भले ही बड़ा ना सही, एक छोटा सा स्थान एक पूजा का जरूर होगा। और पूजा में प्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठा, जिसको हम मानते हैं परमेश्वर के रूप में, जिनको मानते हैं वो होते हैं। एक आस्था है, एक ट्रस्ट है, एक पॉजिटिविटी है, एक एनर्जी का भाव है। ऐसा विश्व और भारत के अंदर कोई भी आपको एकेडमिक या कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं होगा जहां छोटी या बड़ी लाइब्रेरी ना हो। जो एक मंदिर में, जो एक चर्च में, जो एक गिरजाघर में एक रोल जो इनके पदारी का, जो पंडित का, जो ग्रंथी का होता है, सेम वही रोल लाइब्रेरीज में, लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, चाहे उसको लाइब्रेरियन करें, चाहे आप किसी भी नाम से क्यों ना पुकारें, हम ज्ञान के बीच में काम करते हैं। हमारा फर्स्ट प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कनेक्ट द यूजर्स with a diversified knowledge which is stored in the library.
and the information, the knowledge is stored in the books and varied forms. मैं इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में समझता हूं कि दे आर द कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन. Whatever the journals, magazines, and encyclopedias, they are the container of information, and we are the connectors between the information and the consumers, or whatever you called as a clients or the users. और पूरा का पूरा जीवन हमारा समर्पित है नॉलेज को एक्वायर करने में, नॉलेज को वैलिडेट करने में, नॉलेज को प्रोसेस करने में, नॉलेज को प्रिजर्व करने में, और नॉलेज जो हमारी एक लाइब्रेरीज के स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर है उसको अल्टीमेट यूजर तक ट्रांसमिट करने में, उसको प्रोवाइड कराने के लिए. तो उससे पहले व्हाट डू यू मीन बाय ए बुक माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज and then I move ahead. Books have been around us since ages, even before they were available to the common man. Initially, books were read only by the upper classes or monks and the scholars. At that time, books were exceptionally expensive and were copied by hand. It was only when the printing press was invented and sacred books were printed that peoples become more familiar with the books. My dear friends, books are these carriers of civilizations. When we look at our ancient culture and civilization and education systems, we had a world-class universities in the world, Takshila, Nalanda. The scholars from all over the world come to study. और वहां पे हमारे जो लाइब्रेरीज की इतनी इतनी बड़ी लाइब्रेरीज थी तक्षशिला और नालंदा में, और उस नालंदा में तो बताते हैं कि जो उस समय का इन्वेडर था उसने उन किताबों को जलाया. क्योंकि हमारी किताबें क्या हैं कि जो आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स करें, दे आर द कैरियर ऑफ सिविलाइजेशंस. किताबें नहीं तो कल्चर नहीं, कल्चर नहीं तो सिविलाइजेशन नहीं, और सिविलाइजेशन नहीं तो सोसाइटी नहीं. दे आर द कंपेनियंस, सबसे बेहतरीन साथी हैं, टीचर्स हैं, मैजिशियंस हैं, बैंकर्स ऑफ द ट्रेजर ऑफ द माइंड हैं. बुक्स आर द ह्यूमैनिटीज इन द प्रिंट, एंड नाउ द एंटायर वर्ल्ड ऑफ द बुक हैज बीन चेंज्ड, बट देयर पर्पस नॉट बी चेंज्ड. As I told you that they are the container of information, no matter that the information container is print form or the electronic form. And today we have a one culture that is the digital culture, that everything is a digitized form. Everything is transmitted, available in digital form. And that is also a beauty that we can transmit that information to the ultimate users, indefinite users, within a fraction of a second. So, my dear friends, it is quite amazing to learn that while some of do not even take the pain to look at those books are decorated in the shelf for the years, others consider books to be the most important things on the earth. This is the prime responsibility of the information container, information consolidators, or the information ambassadors. Or you may call it generic in the library, that we have the connection. Ranganathan told long back, the maximization or the utilization of the information resources or the documentation, it's not based on the maximum number of the collection, it's based on the approach. The investors of the information, how they will take it, कि वो किस तरह से अपने यूजर्स को कनेक्ट करते हैं, किस तरह से लाइब्रेरी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं. God has been kind enough to create such miracles of narrowing down the world into a small, flat, rigid sequence of papers. हमें आज भी पता है कि जब, क्योंकि किताबों को सबसे पवित्र माना गया है, किताब अगर हमारे हाथ से गिर जाती है तो आज भी हम, वो हमारी संस्कृति, वो हमारी कल्चर है, हमारी सभ्यता है, हमारे ट्रेडिशन है, रिचुअल्स हैं, कि आज भी हम उसको जब गिर जाती है तो
बड़े सप्रेम भाव से उसको उठाते हैं और मस्तिष्क से लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि बॉडी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई इंग्रेडिएंट है, कंपोनेंट है, तो वो ब्रेन है। और मस्तिष्क को ब्रेन से लगाने का तात्पर्य ये है क्योंकि ब्रेन को एनर्जाइज, ब्रेन को चैनलाइज, ब्रेन को जो एक फूड का काम करती है, वो किताबों के अंदर वो सरस्वती जो ज्ञान है वो भरा हुआ है, इसलिए हम उससे मस्तिष्क से चूमते हैं। किसी ने कहा, बुक सिंस इट्स इंसेप्शंस आर द कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कैरियर ऑफ मैनकाइंड कल्चर एंड नॉलेज। I certainly would like to quote this quote. A house without books is like a room without window. Books are uniquely portable magic. So my dear friend, somebody said a room without books are like body without a soul. So you will find that books are everywhere. And we are the information providers. आजकल में एक टर्मिनोलॉजी हम लोग बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं. Some terms which are borrowed from the different domains, especially comes from the Western world, and we applied those in our academic research or discussions without understanding actually its actual meaning in Indian context. मैं एक दो एग्जांपल्स आपको देना चाहता हूं. एक term was used since long, information explosion. Information explosion, देखिए कि information explosion का मतलब नेगेटिव सेंस में है. Anything which is explode, it destroy everything surrounding it. लेकिन information कभी explode नहीं करती है. Information आपको आगे ले जाने का पाथ दिखाती है. The term was wrongly applied and wrongly used in the literature. It could be the information overload, information exponential growth, क्योंकि as information का इतना growth है, उसको हम कैसे डेवलपमेंट में कनेक्ट करें. Right information, the right time, in the right format, in the right users, in the right spirit, in the right presentation, that certainly lead for the development. और एक टर्म आजकल हम बहुत पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैं अपने इंटरप्रिटेशन से उसको समझता हूं कि knowledge is the wealth. You will find many titles in the knowledge and the wealth. If knowledge is the wealth, then everywhere is the knowledge. But where is the wealth? Wealth can be generated by applying the knowledge. So here it should be the applied part, the application of the knowledge is the wealth. Until you applied your knowledge, you can't think about creation of the wealth. Every explicitly or implicitly everywhere is the knowledge. Then why not a generation of the wealth? It can only be generate of the wealth when it will be applied. So the application part of the knowledge is the wealth. Not a static knowledge can't be generate the knowledge, because knowledge is a dynamism. Knowledge has a multi-dimensional and dynamics. So the applied part of the knowledge will generate the wealth. So correct this sentence. So let me just see 5 to 6 minutes on the philosophy of the libraries, how the philosophers, great philosophers, great freedom fighters get motivated with the libraries, get common encounters. And here there are many instances in the history, even in today political systems also. एक स्लोगन, एक नारा, वो पूरे नरेशन को चेंज कर देता है. आपको बहुत सारे ऐसी चीजें मिलेंगी जो उस समय वो एक फ्यूल का काम करती थी, उत्तेजना का काम करती थी, लोगों को कनेक्ट करने का काम करती थी. So what are the entire philosophy of library system as a whole
or you may call the ocean of the information or the information reservoir, or whatever you call by any nomenclatures. What is the philosophy behind it? The first and foremost is the access. कोई भी document है, कोई भी information है, it must be accessible to all. Accessibility is more important, और accessibility के साथ साथ affordability भी होनी चाहिए. Because I believe and I understand कि आज की डेट में information just like a natural resource. हमारे पास water है, हमारे पास air है, हमारे पास sun है. Information is also like a natural resource. That's why the information pertaining to the medical science, pertaining to the sociology is available freely or accessible on the public domain. So first and foremost, the access. Then the confidentiality or the privacy. This is the moral duty or ethics of the information aggregators or the librarians or the persons who are connect directly or indirectly with the business of the information world. कि उस information की confidentiality maintain करें, उसकी privacy को maintain करें. क्योंकि why this confidentiality? There are certain type of informations or the documents, especially in the sectors of the defense, the intelligence, the security, that information can't be open, information can't be transmitted. Then the democracy. My dear friends, that information is a democracy. Libraries is a wall of the democracy. There are many countries where the democracy is flourished from the library platforms, library floors. Library invite the open minds with the democratic systems. Let people come together, discuss together, debate together, originate new ideas. That is the philosophy of library system. Diversity. And diversity means that library has a diversifications, user diversification, knowledge diversification, resource diversifications. हम किसी को discriminate नहीं करते हैं. All aged, all seasoned, all type of document. Education and lifelong learning. Without libraries or without the books, education can't be survived, lifelong can't be survived. And there is a huge difference between the education and life learning. I will not go in detail. Then the intellectual freedom. What comes in your mind, let's provide a space कि आप उसको freedom के साथ उसको share कर सके. But intellectual freedom that provided by our constitutional provisions also. लेकिन इंटेलेक्चुअल फ्रीडम के साथ साथ हमारी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज भी होती हैं. ये नहीं है कि हम सब कुछ कह दें, सब कुछ बोल दें इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. उस फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ हमारी फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती हैं. दैट मस्ट बी मेंटेन्ड. एंड द प्रिजर्वेशन. व्हाई वी प्रिजर्व? बिकॉज लाइफ इज फॉर ए सर्टेन टाइम, मे बी 50 years, 100 years, and maybe more. But we preserve our heritage, we preserve our knowledge, we preserve our culture and civilization. As I told that the books are the container of the civilizations. Books are the container of the culture, the civilization, the ethics, the values, the knowledge, the information. That must be preserved. And today, I think we have a various kind of tools and technology which is being used in the library system to preserving the documents. And today the entire world is just converting to the digital. And my dear friends, this E word, E means electronic, has personification for the entire world. If you put the E to any subject, may I request all the audience, please mute yourself. That E, we are transforming the traditional system, transforming to the electronic system. And it is a very powerful system. Journals to e-journals, books to e-books, magazines to e-magazines,
library to e-library, ticketing system to e-ticketing, bank to e-banking, learning to e-learning. You will find everywhere the E. I'm afraid there may be some e-father or e-mother or e-brother. I'm afraid. So that is the beauty that we have to preserve. The public good. Here good means the goods you can take in two sense, as a asset or as a value. So that is the importance that philosophy, the library should have the good, public good in terms of the asset or in terms of the value. And professionalism. Any profession can survive when we have a sound theories, sound postulates, sound norms, sound rules, sound manuals for the professionalism. Why a person called professionalism? Because he has certain different skills to work or to act in that profession. That's why it is called professionalism. And service, of course, we have to serve. And social responsibility. We undertake all these club together. That is the social responsibility of the philosophy of the library systems. Now I move ahead. My dear friends, I have taken certain. These are some only the symbolic, just to make you understand that how a single quotation, एक नारा जो सिंगल नारा था, जो उन्होंने बहुत ही किताबों को पढ़ने के बाद, पुस्तकों को संपर्क में आने के बाद, जिसने कि उस समय वो अलग जलाई और लोगों को कनेक्ट किया और एक ऐसा वातावरण देश में तैयार किया कि अल्टीमेटली उनके प्रयासों से, उनके प्रयत्नों से, उनके बलिदानों से, उनके शहीदियों से हमें देश आजाद मिला। बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम एक नारा नहीं है, एक उस समय की एक विचारधारा थी, उस समय का एक भाव था। और वंदे मातरम बंकिम चटर्जी का लिखा हुआ है। जब 1902 में आपने एक नाम सुना होगा, इंसुलिन सोसाइटी। श्री अरबिंदो जब बड़ौदा से 1906 में कलकत्ता गए, क्योंकि अरबिंदो, मैं समझता हूं कि देश के उन महान फिलोसफर्स में उनका नाम शुमार है, जिसमें पहले हम फिलोसफर की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंदा, जिन्होंने वेस्टर्न फिलोसफी को चैलेंज किया और इंडियन फिलोसफी के दर्शन कराए, जो उनका के योगिक पे था, स्पिरिचुअल गुरु कहलाए। 1893 का वो विश्व फेमस भाषण शिकागो सम्मेलन में जो उन्होंने धर्म संसद में कहा, और 4 साल वो बाहर रहे, तो उस समय इंसुलिन सोसाइटी, एक कलकत्ता में एक सोसाइटी बनी 1902 में, जिनको कि इस्टेब्लिश किया शरद चंद्र बोस ने। और इस सोसाइटी को हम कहें कि ये गंगोत्री थी उन स्वतंत्रता संग्रामियों का, जहां एक वेल एस्टैब्लिश लाइब्रेरी होती थी। कहते हैं कि ये जो इंसुलिन सोसाइटी का उस समय मतलब ये था, 1902 में बनी, और 1906 में इसके 2 पार्ट होते थे। एक ढाका का पार्ट जिसको कि युगांतर सोसाइटी बोलते थे, और वहां पे एक वंदे मातरम के नाम से, जिसको युगांतर जनरल बंगाली में कहा, वंदे मातरम के नाम से अरबिंदो ने स्टार्ट किया। ये कम्युनिकेशन के साधन होते थे, और उसका एक्चुअल में मीनिंग था कि जहां अखाड़ा, जिम्नेजियम, जहां पर यूथ को वो मतलब कनेक्ट करते थे फिजिकल एजुकेशन के लिए, देश के राष्ट्रव्यापी धाराओं के लिए, राष्ट्रव्यापी ज्ञान के लिए। और वहां पर मैं ये कहूं कि वो एक तरह से बहुत सारी पार्टियों का जन्मदायी भी रही। वीर सावरकर जो हिंदू महासभा के थे उस समय, कनेक्ट रहे उसे। बलिराम हेडगेवार जी जो आरएसएस के संस्थापक थे, 1903 और 4 में वो वहां पर उस इंसुलिन सोसाइटी में गए और वहां पर उन्होंने ज्ञान अर्जन किया। रविन्द्रनाथ टैगोर, खुदीराम बोस, क्योंकि आजादी का जो अलख जो जला था, उसका जो मुख्य केंद्र था,
वो कैलकाटा था, क्योंकि 1905 में उन्होंने बंगाल विभाजन किया, तो वहां पर जितने भी आपके बहुत सारे नाम शायद मिल जाएंगे आपको, तो वहां से हुए। और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र मानव, जिसको कि हम कहते हैं बाल गंगाधर तिलक, द एम्बेसडर ऑफ द नेशनलिज्म इन अ कंट्री, तो ये लाइब्रेरी से कहीं ना कहीं उनका ओतप्रोत रहा। सुभाष चंद्र बोस, इनके ये नारे मात्र नहीं थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सहयोग की बात करते थे, ये अलख जलाने की बात करते थे। जय हिंद मीन्स कि हिंद, जब हम जय हिंद बोलते हैं तो एक देश प्रेम और देश राष्ट्र भावना उत्कृत होती है। और आज भी हमारी एक भारतीय सेना का, भारतीय हमारे जितनी भी सेना है उसका एक संबोधक वर्ड है जय हिंद। हिंद से बढ़कर कोई नहीं। आजादी नहीं दी जाती, ली जाती है। मतलब आजादी कोई भी कभी भी कोई हमेशा याद रखिएगा, सुख सुविधाएं कोई भी आजादी कोई थाली में परोसकर आपको नहीं देता है। आजादी हमेशा छीनी जाती है। उस समय दो बड़ी एक धाराएं काम कर रही थी, एक नरम दल था तो एक गरम दल था। नरम दल का सोच था कि अहिंसावाद के माध्यम से हम आजादी लेंगे। दूसरा, जिसमें बाल गंगाधर तिलक थे, सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, उनका मानना था कि ये अहिंसा से कुछ हासिल नहीं होने वाला है जब तक खून की होली हम नहीं खोलेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे देश की संप्रभुता पे अटैक किया है और यहां पर हमको भगाना ही होगा। कुछ ऐसे भी थे कि उस समय जो लेखनी के रूप में काम कर रहे थे, जो लाइब्रेरी के सृजन में काम कर रहे थे, जो नॉलेज सृजन में काम कर रहे थे, जो जर्नलिज्म में काम कर रहे थे। कुछ ऐसे थे जो फ्रंट पे आके लड़ रहे थे, कुछ ऐसे थे जो एजुकेशन का काम कर रहे थे, लोगों को कनेक्ट करने का काम कर रहे थे। कुछ ऐसे भी लोग थे कि इन सबको सपोर्ट कर रहे थे। वो धाराएं अलग थी, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन उन सब का एक ही मकसद था। जैसे पूरे हमारे भारतवर्ष में न जाने कितनी ही नदियां, चाहे वो गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे आपका ब्रह्मपुत्र हो, विभिन्न नदियों के स्रोत से उत्पन्न होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली समुद्र में जाके मिल जाती हैं। तो उस समय जितनी भी ये धाराएं थीं, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे थे, चाहे वो लाइब्रेरी के फील्ड में काम कर रहे थे, चाहे लेखनी के काम में कर रहे थे, उनका एक ही मकसद था, देश को आजाद कराना। और उसमें बहुत सारा जो खुदीराम बोस, आगे चलते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, कहां से आया ये नारा? ये किस सोच को दर्शाता है? 23 और 24 साल के रहे होंगे भगत सिंह, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया, क्योंकि उस समय को हम सोचते हैं, उस समय जो एक ज्ञान का जो केंद्र, उस समय वेस्ट बंगाल रहा, कैलकाटा रहा, बाद में मूव किया दिल्ली के लिए, महाराष्ट्र में पुणे और बॉम्बे में था। ये उस समय के एक उस समय देखिए कि उस समय इतने कम्युनिकेशन के साधन नहीं होते थे, कनेक्टिविटी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी देश को एक जोड़ा। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वदेशी के सबसे बड़े संस्थापक, स्वदेशी के सबसे बड़े प्रमोटर, उद्घोषक बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र के राष्ट्र प्रतीक, ऐसे ही नहीं थे। उस समय मिलने के अलग अलग तरीके थे, अलग अलग चैनल थे, अलग अलग बात करने के तरीके थे। सीक्रेट सोसाइटी होती थी जहां पे लोग एक पर्टिकुलर समय पे मिलते थे, बात करते थे, और एक निश्चित होते थे। कहीं ना कहीं बहुत सारे त्योहारों का जो हमारा संबंध है, स्वतंत्रता संग्राम से संबंध है। गणेश पूजन, गणपति जब बाबा मोरिया जो हम बात करते हैं, तो इसका जब आपका 1900 शताब्दी के आसपास बाल गंगाधर तिलक जब मिलने का एक रहा कि हम लोग ऐसे गणेश के रूप में मिलेंगे, मतलब एक दिन निश्चित कर लेते, तब से राष्ट्रीय पर्व बन गया। अनुभव सोसाइटी जो पुणे में थी, उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। महात्मा गांधी जी,
सब कुछ छोड़ करके भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब अहिंसा के सबसे आगे, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में उन्होंने भी कहा करो या मरो, क्योंकि करोगे तो आगे बढ़ोगे, मरने की चिंता नहीं। आगे बढ़ते हैं तो हमारा, जैसा मैंने कहा, सादगी के प्रति, राष्ट्र के राष्ट्र रक्षक, जीवन के प्रति उत्तरदायी, जिनका जीवन प्रेरणाओं से भरा हुआ है, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी, कितनी ही गरीबी हालत में पड़े, लाइब्रेरी की संपदा को उन्होंने जाना, लाइब्रेरी के बारे में उन्होंने पहचाना, और लाइब्रेरी से उत्प्रोत होकर के और वो देश को अलग जलाया कि जय जवान तो जय किसान। और आज हम कहते हैं कि जय विज्ञान। अशफाकुल्लाह खान, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक गलियों में गीत गाए जाते थे, मोहल्लों में गीत गाए जाते थे, टोलियां निकलती थी, लोग कनेक्ट हो जाते थे। ना देश ना उस समय संप्रदाय देखते थे, ना जात देखते थे, ना धर्म देखते थे। सिर्फ एक ही जात और एक ही धर्म था कि हम रिवोल्यूशनरी हैं, हम भारत के सपूत हैं, हमें देश को आजाद कराना है। गुरुओं के गुरु, कुल गुरु, साहित्य के पुरोहित अपने रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि में जब बात करते हैं, तो ये सारी चीजें, इसमें बहुत सारा योगदान, क्योंकि ये लाइब्रेरी के बहुत बड़े यूजर होते थे, पढ़ते थे। आगे चलते हैं, स्वामी विवेकानंदा, जब लाइब्रेरी की बात करें, नॉलेज की बात करें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि स्वामी विवेकानंदा के ऊपर बात ना करें। बुक्स आर द इंडेफिनिट इन द नंबर एंड टाइम इज शॉर्ट। द सीक्रेट ऑफ नॉलेज इज टू टेक व्हाट इज एसेंशियल, take that and try to live up to it. You have to grow from the inside out. None can teach you, none can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul. कर्म योगा, राज योगा, राज योगा है समथिंग डिफरेंट, क्योंकि उन्होंने कनेक्टिविटी की बात करी, स्पिरिचुअलिटी की बात करी, भारत के दर्शन कराए वेस्टर्न फिलॉसफी से, कि भारत, जैसा कि मैंने पहले एग्जाम्पल दिया कि वो त्याग का है। हमारे भारत का जो एक सिद्धांत है, कॉन्स्टिट्यूशंस के जैसे सिद्धांत हैं, भारत का भी सिद्धांत है कि हम पूरे विश्व को एक परिवार समझते हैं, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड पूरे विश्व को एक बाजार समझता है। हम विश्व को परिवार की भावना से देखते हैं, ग्लोबल विलेज के नाम से जानते हैं। ये देश, ये भारत की भावना है। अब्दुल कलाम लाइब्रेरी के बहुत बड़े एम्बेसडर, बहुत बड़े पायनियर, और इनकी तो बहुत सारी कोच आपको मिल जाएंगी। वन बेस्ट बुक इज इक्वल टू 100 गुड फ्रेंड्स, बट वन गुड फ्रेंड इज इक्वल टू ए लाइब्रेरी। इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बॉर्न लाइक ए सन, यू हैव टू ड्रीम बिफोर यू ड्रीम कैन कम ट्रू। ये ऐसे ही महान नहीं बने थे, जीवन में इन्होंने पुस्तकालयों का उपयोग किया था और उनको पूरे रूप में सदुपयोग किया था। क्योंकि हमारा जो जीवन है, हमें कहीं ना कहीं दीपक से प्रेरित होना चाहिए। दीपक अपने आप को जलाता है, दूसरों को प्रकाश देता है, वो किसी के प्रकाश से जलता नहीं है। सेम वही भावना ज्ञान और ज्ञान के रक्षक की होनी चाहिए। आज वो भावनाओं का कहीं ना कहीं डिमिनिशिंग हुआ है। द सिंबल ऑफ नॉलेज, कहते हैं कि अंबेडकर साहब के पास में अपने आप में उस समय की विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, पर्सनल लाइब्रेरी थी, जिसमें 50-60 हजार किताबें थी। तो जितने भी हम लोग बात करें, जितने भी ग्रेट लीडर्स की बात करें, ग्रेट थिंकर्स की बात करें, ग्रेट नॉलेज प्रोपोगेटर और इनिशिएटर्स की बात करें,
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइब्रेरी का कहीं ना कहीं उनके लाइफ में बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि लाइब्रेरी मात्र एक किसी संस्था का वो एक स्पेस ही, वो कोना नहीं है जहां किताबें रखी जाती हैं। वो एक ऊर्जा का वो स्रोत है, पॉजिटिविटी का वो स्रोत है जो इग्नोरेंस से आपको नॉलेज की तरफ लेके जाता है। और वहां पे जो लाइब्रेरी स्टाफ है, जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं, उनका ये दायित्व व कर्तव्य बनता है कि जैसे एक भक्त और भक्त को उसका जो एक पुजारी है अपने परमेश्वर से कनेक्ट कराता है, रीति रिवाज से उसको कनेक्ट कराता है, ठीक उसी तरह से लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स को भी डिफरेंट सोर्सेस में स्टोर हुई नॉलेज से उसको कनेक्ट कराना है। तो जो लाइब्रेरी है, आई थिंक दिस इज द स्टोर हाउस ऑफ द नॉलेज। बहुत सारी अच्छी टर्म्स मिल जाएंगी। अनलेस अंटिल द लाइब्रेरी is not grow, is not preserved, is not maintained, is not developed, I think we can't think about a sustainable model of the education in the country or any country. And this is also our prime duty that we must realize as a library role in our life, librarians' role in the education and learning, library 20/7 connect with all the kinds. So who will save our books? There's a beautiful quotation. The librarians are the journals in the war of ignorance. Because when there is ignorance, there is a irregularity, there is a adversity. When we are aware about the situations, when we are aware about the knowledge or the problems, we can find the solutions. And to find the solutions, we have to connect with the libraries. So this is all about, I think, lost, but ironically, this is the irony of the, not in India, but the entire perspectives. That in spite of the role and importance and significance of the libraries, that we had many challenges. I will not speak about the challenges. We have to face these challenges. Somebody said since long, cutting library during a recession is like cutting hospitals during a plague or during this COVID. So my dear friend, if you have a garden and a library, you have everything you need. It's probably one of the best known quote about the libraries. Libraries are the essential element in a process of giving users access to the knowledge. For many people, they are only place with the access to free internet. Most importantly, however, libraries are the place where you can expect smart and clear answer to even most difficult questions, as one of my favorite cartoons says. So, means, and then there is a change in the non-stop tsunami of global informations. Librarians provide us with floaties and teach us to swim. Without libraries, what have we? We have no past and no future. An original idea that can't be too hard, the library must be full of them. A library is, to modify the famous metaphor, Scott's, should be the delivery room for the birth of the idea, a place where history comes to the life. There are many beautiful quotes and quotations and literatures on the libraries, but somehow there is a diminution. And we should not be care about that. The libraries, as of course the users as is a basic problems that users are diminishing day by day. But libraries has metaphor in the different forms, which basically internet technology. We should not be afraid about this technology. We should add this technology, adding the value in the library services. All this technology is not a competitor. All this technology is not a threat. We have to take as a opportunity this technology in providing the information services.
Now your user can connect your library 20/7 with the appropriate technology, that we have to develop such kind of systems. Systems already prevail in the present, but we have to work on it. So last, my two favorite things in the library are the bicycles. They both move forward without wasting anything. So my dear friends, so now I stop talks, almost 1 hour. Thank you very much for giving me this opportunity to sharing my views on the topics. And I believe that whichever you feel that significant and important, please catch it, cash it, apply it in your personal and professional life. I'm sure if you have a positivity, if you have a positive thought, positive minds, positive attitudes, positive approach, result will also be positive. So with this, my few words, my discussions, thank you one and all. Thank you very much, the entire administration of Sanchi University, my friends Amit, and all dear participants who are connected different parts of the countries for listening me. And thank you very much, and wish you all the very best. Thank you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा और बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे शब्दों में आपने पूरे स्वतंत्रता 1947 से लेके अभी तक का जो कनेक्शन है लाइब्रेरी का स्वतंत्रता संग्राम में, आपने एक दर्शन करा दिए। 1947 से लेके अभी तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, यहाँ तक कि हमारे जो अब्दुल कलाम जी हैं, आपने उनको भी बहुत अच्छे तरीके से लिंक किया, उनका योगदान बताया। सर ने बताया कि किस तरह से ये जो लाइब्रेरीज होती हैं वह कंटेनर ऑफ सिविलाइजेशन है। पुस्तकालय और पुस्तकालय में उपलब्ध साहित्य, चाहे वह कोई सा भी महापुरुष को आप उठाकर देख लीजिए, उनकी जीवनी को पढ़ लीजिए, उनमें पुस्तकालय और उनके साहित्य का एक बड़ा योगदान मिलेगा। तो बी एज ए एजुकेटर, एज ए लाइब्रेरियन, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस परंपरा को कैसे आगे ले जाएं। हम उसके ध्वजवाहक हैं। सर ने जैसा कि बताया कि हम इस परंपरा के ध्वजवाहक हैं, हमें इसको और आगे ले जाना है। तो सर का जो वक्तव्य रहा है, सर का आज का ये टॉक रहा है, बहुत ही फ्रूटफुल रहा है। बहुत कुछ नई चीजें जो अभी तक नहीं सुनी थी, ऐसी चीजें हमारे सामने आई हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं निश्चित ही लाभान्वित हुए होंगे। और सर आप पधारे और हमारा आपने आग्रह स्वीकार किया, अपना कीमती समय हमें प्रदान किया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक फॉर्मल जो वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं हमारे विश्वविद्यालय के जो अल्टरनेटिव एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो विभाग अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रभाकर पांडे सर को आमंत्रित करता हूं। सर प्लीज। अगर उससे पहले अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ अगर क्लैरिफिकेशन है, तो वो अगर हम एक दो ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा, अदरवाइज तो गो अहेड। जी सर, जी सर। आई हैड अ टाइम बिकॉज 4 o'clock आई हैड अ मीटिंग, नो प्रॉब्लम। ओके। किसी के कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है, अदरवाइज वी विल मूव फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। If anyone have any question, any query, please ask to sir. मेरे ख्याल से सर इतने अच्छे सधे हुए शब्दों में आपने सब कुछ कहा है कि किसी की कोई जिज्ञासा संभावना नहीं है, किसी की कोई जिज्ञासा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू। धन्यवाद सर। आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है और सांची विश्वविद्यालय भी आजादी के अमृत महोत्सव को पूरे जोश के साथ, पूरे अपने बल के साथ इसको सेलिब्रेट कर रहा है। और आजादी के अमृत महोत्सव के इसी कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में
विश्वविद्यालय के पुस्तकालय विभाग के माध्यम से आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। और आज के इस ज्ञान सत्र में जैसा प्रोफेसर केपी सिंह सर का जो आज व्याख्यान हुआ वो बहुत ही फ्रूटफुल और यहाँ पर उपस्थित हम सभी श्रोताओं के लिए ज्ञानवर्धक रहा, विचार प्रबोधक रहा। आज के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रोफेसर केपी सिंह सर के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। आपने अपने इस व्याख्यान के माध्यम से, जैसे पुस्तकालय के विषय में तो एक सामान्य अध्येता के रूप में हमारी समझ थी कि हम अपने शोध के लिए, अपने ज्ञान संवर्धन के लिए पुस्तकालय में हम जाते हैं। वहाँ पुस्तकों के जो अप्राप्य भी पुस्तक हो या फिर जिन पुस्तकों तक हमारी पहुंच आसान नहीं है, वो पुस्तकें हमें सुलभता से पुस्तकालय में मिल जाती है। लेकिन आपने पूरे स्वाधीनता आंदोलन में पुस्तकालयों की जो भूमिका रही है कि किस प्रकार जो है ये केवल और केवल पुस्तकों के संरक्षण और संवर्धन के ही स्थल नहीं थे, ये अपने आप में एक वैचारिक प्रवाह एवं राष्ट्रीय अस्मिता को पोषित करने वाले स्थान के रूप में पुस्तकालयों ने अपना योगदान दिया है। और ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय, एक विचार जो है आपने स्थापित किया अपने पूरे व्याख्यान में। और ये जानकर हम सब लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इस व्याख्यान के लिए, इस ज्ञान प्रवाह के लिए, इस अद्भुत प्रबोधन के लिए मैं आपके प्रति अपने विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया, उनका हमेशा आशीर्वाद हमारे साथ होता है और सतत सहयोग हमें मिलता है। आज किसी कारणवश वो किसी कार्यक्रम में होने के चलते, जैसा अमित सर ने बताया, वो नहीं उपस्थित हुई। मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। उनका मार्गदर्शन हमें ऐसे ही सतत मिलता रहे। और हमारे कुलसचिव प्रोफेसर अर्केश चतुर्वेदी सर, जो कि स्वयं में इतिहास के विद्वान हैं और उनका जो इतिहास के प्रति इतिहास बोध है और उनकी इतिहास दृष्टि है वह अपने आप में अद्भुत है। तो मैं अलकेश सर के प्रति भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और आपका जो हमें सतत प्रेरणा मिलता है वो मिलता रहे, जिससे हम विश्वविद्यालय के जो लोग हैं वो ऐसे ही ज्ञान सत्र का आयोजन करते रहें। और अंत में मैं इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे डॉक्टर अमित ताम्रकर जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और सहयोगी हमारे हरीश असाटी जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि आपने अत्यंत इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को, इस विचार गंगा को जो है हम सबके लिए उपस्थित कराया और हमें लाभान्वित कराया। इसके लिए आभार। और अंत में आप सभी शोधार्थी और हमारे जो भी यहाँ उपस्थित सुधीजन हैं, विद्वज्जन हैं, उन सब के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप सबने जो है पूरे धैर्य से और पूरे मनोयोग से जो है इस पूरे ज्ञान गंगा का जो है रसास्वादन किया और इससे जो है आप लाभान्वित हुए। पुनः पुनः आप सभी के प्रति हृदय से आभार। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सभी प्रतिभागी जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय यहाँ पर दिया और ज्ञान प्राप्त किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अमित जी। इसका अगर आप रिकॉर्ड किया है, कहीं लाइव है तो लिंक शेयर कर दीजिएगा। तो जो बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स हैं, किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो ताकि हम लोग उसको विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उसको लिंक करके दोबारा उसको सुन सकें और जान सकें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमाएं नहीं होती, लेकिन हमारी अपनी जरूर सीमाएं होती हैं। और मैं समझता हूं कि हमें हर समय अपनी सीमाओं का प्रसार करते रहना चाहिए और उनका प्रसार करने में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ज्ञान ही एक वो तंत्र है या उसको टूल है जिसके माध्यम से हम अपनी सीमाओं को मीन्स की अग्रसर कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सांची यूनिवर्सिटी के पूरे प्रशासन को कीप इन टच। आई हैव शेयर्ड माय फेसबुक लिंक एंड my website link also. I am very active in the social media.
You will find everywhere my all research, all publications. तो सभी हैं। मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा, कुसुम मलिक जी हैं, मैं बहुत समय से इनको देख रहा हूं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं थोड़ा सा, मुझे अपना ज्ञान बता दी। मैडम आप कहाँ हैं आजकल? अभी थोड़ा म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी हमारी काफी मतलब सीनियर लाइब्रेरी प्रोफेशनल हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, तो आप कनेक्ट रखिए। थैंक यू वेरी मच। नाउ मी अलाउ मी टू लीव बिकॉज 4 o'clock आई हैड अनदर लेक्चर। थैंक यू sir. Thank you so much. Thank you very much. थैंक यू। थैंक यू अमित जी। Thank you, sir. Thank you.